चलो बड़ा गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. And now let me start bada with our lecture. In our last lecture, bada, we have started studying about the logarithmic function. Bada. And when we have started studying about the logarithmic function, so bacha log in the logarithmic function, what we have studied, bada, कि log is used, bada, log जो है बड़ा logarithmic function बड़ा log is used for solving the complicated type of functions बड़ा in a easier way बड़ा. Whenever we come across bada, with a complicated type of expressions bada, so we try to convert that complicated expressions bada, into a easier way with the help of log bada. बराबर है. So when we have started studying bada, about the logarithmic function, तो ये देखो बड़ा in the logarithmic function बड़ा we have studied the formulas बड़ा, the formula for finding the derivative of log y बड़ा, derivative of log y. बच्चा लोग मुझे ये बताओ कि when we are talking about the term log y, बच्चा लोग log y it is in the form of log y बड़ा, it is log a नहीं, it is in the form of log x बड़ा, it is in the form of log x. And we know that बड़ा कि the derivative of log x is 1 upon x बड़ा. फॉर्मूला था किसके लिए? x के लिए, बट यूज किया बड़ा हम लोग ने किसके लिए? y के लिए बड़ा. बराबर है. तो वहां पे हम लोग को भरना पड़ेगा पेनल्टी. तो यू विल गेट योर आंसर टू बी एज 1 upon y into derivative of y. अब चेक करो बड़े यहाँ पे which of the expressions they are being considered to be as बड़ा a complicated form. तो पहले तो बड़ा f of x into g of x is considered to be as a complicated form. Second, f of x upon g of x is considered to be as a complicated form. That means product, quotient, and number 3 जो है बड़ा that is variable raised to variable बड़ा, that is considered to be as a complicated form बड़ा, variable raised to variable बड़ा. And after that we have started studying about laws of logarithm bada, laws of logarithm. In that laws of logarithm bada, we have studied the product rule. Logarithm of m into n, answer will be equal to log m plus log n. Quotient rule bada, logarithm of m upon n, answer will be equal to log m minus log n. And according to the bada power rule, logarithm of m raised to n. बड़ा चेक करो पावर में तुम लोग के पास कौन है? n. But that n is creating the problem बड़ा. तो भाई हम लोग उसको टिचकी मार के बड़ा वहां से भगा सकते हैं. जो है बड़ा पावर में बैठे बैठे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, टिचकी मार के बेटा जब उसको गिरा दोगे बेटा तो ये आगे आ जाएगा. तो यू विल गेट द आंसर एज n इंटू लॉग एम. चलो रेडी. तो हियर यू विल गेट योर आंसर टू बी एज एक. चलो बेटा राइट डाउन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. चलो बेटा पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. स्टार्ट बेटा विद योर फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज ये देखो
logarithm of a to the base a. Answer will be always, it will be equal to 1. Log a to the base a. Answer बड़ा it will be equal to 1. अच्छा, why और आंसर बड़ा it will become equal to 1? क्योंकि बड़ा log के साथ बड़ा नंबर कौन प्रेजेंट था? a. उसके साथ बड़ा बेस कौन है? a. Number and base, they are exactly beta one or the same. So beta since the number and base, they are exactly the same. Therefore, we can say that a logarithm of any number to the same base, answer will be always equal to 1. Next, number 2, log 1 log 1 to the base a. But the rule says that a logarithm of 1 to any base, answer जो है बड़ा, it will be always equal to 0. Logarithm of 1 to any base, answer will be always equal to 0. Number 3, the value of log e, the value of log e, the value of log e is always considered to be as 1. So immediately, but there comes a doubt asking a question, madam. Sir, why the value of log e is considered to be as 1? What is the reason? The reason is, बड़ा ये देखो, तुम लोग ने बड़ा फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट में तुम लोग ने ये देखा होगा कि बड़ा लॉग के पास बेस था. अच्छा, क्या था उसके पास बेस? तो उसके पास बड़ा बेस ए था. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट बड़ा लॉग ई, क्या उसके पास बड़ा यहाँ पे कोई बेस है? तो आंसर बड़ा इट विल बी नो. सर वहां पे कोई भी बेस नहीं है. बट याद रखना बड़ा कि कोई भी लॉग जो है बड़ा, कोई भी लॉग वो विदाउट बेस नहीं होता है बड़ा. कोई भी लॉग वो विदाउट बेस बड़ा नहीं होता है. जिस लॉगरिथम के पास बेस नहीं होता है बड़ा, उसके पास बेस हमेशा ई होता है. क्या होता है बड़ा उसके पास बेस? ई होता है. ई बराबर है. तो हियर यू विल गेट द आंसर एज ए बड़ा. log e to the base e, log e to the base e. बच्चा लोग चेक करो और फटाफट बड़ा मुझे आंसर दो. ये log के पास बड़ा नंबर कौन है? e है. बराबर है भाई. उसके पास बड़ा जो बेस है वो बेस कौन है बड़ा? e है. नंबर एंड बेस, number and base, but they are all exactly one or the same. And since they are all exactly one or the same, so we know that a logarithm of any number to the same base. Batao, what will be the answer? Correct. Answer will be equal to 1. Answer bada it will be equal to 1. Well, next at number 4. At number 4, a raised to log x to the base a. A raised to log x to the base a. अब बच्चा लोग ये देखो फटाफट, यहाँ पे बड़ा जो इंडाइसिस का जो बेस है बड़ा वो कौन है? ए. लॉग के पास भी जो बेस है बड़ा वो कौन है? ए. तो मेन बेस एंड लॉग का जो बेस है बड़ा, दे आर ऑल एग्जैक्टली बड़ा वन और द सेम, राइट? तो बच्चा लोग इंडाइसिस का बेस एंड लॉग का बेस सिंस इट इज वन और द सेम, आंसर जो है बड़ा इट विल बी इक्वल टू एक्स. आंसर जो है बड़ा इट विल बी इक्वल टू एक्स. अब ये जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर मैंने बताया मैडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़ा. ये तुम लोग को एज इट इज बड़ा लर्न करना है. टाइम आने पे मैं तुम लोग को बड़ा ये सब पूछ लूंगा.
चलो mark this as very important. And now we are proceeding बेटा with the new exercise. सब लोग स्टार्टिंग से ही बड़ा प्रॉपरली ध्यान देना, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बड़ा हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा सम से। एक्स्ट्रा सम यू कैन राइट डाउन, differentiate the following पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। differentiate the following with respect to x. Differentiate the following with respect to x. बराबर, and that extra sum we have to differentiate the term x raised to x raised to x. चलो भाई सब लोग रेडी? x raised to x. अच्छा, तो when you will start बेटा with the differentiation, how you will start बेटा with the sum? ये देखो, solution, let y is equal to let y is equal to x raised to x. Let y is equal to x raised to x. चल बेटा फटाफट फटाफट बेटा मुझे सब लोग आंसर दो कि when we are going to differentiate this term बेटा x raised to x, तो बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो गिवन टर्म है बेटा x raised to x, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, चलो फटाफट मुझे बताओ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, मुझे ये बताओ बेटा कि x raised to x जो है बेटा, अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है करण, अनेरी, चलो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अर्चना, अरे वाह वेरी गुड, एक्स रेज टू एन, और कौन है बेटा? प्रियंका, वेरी गुड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू एन। ये आंसर जो तुम लोग ने बोला है ना बेटा एक्स रेज टू एन, बेटा ये रॉन्ग आंसर है। कौन सा आंसर है बेटा? इट इज अ रॉन्ग आंसर बेटा। अच्छा, व्हाई आई कैन नॉट कंसीडर दिस गिवन टर्म टू बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू एन? अच्छा, बिकॉज एक्स रेज टू एन बेटा कंसीडर करने के लिए तुम्हारे पास बेटा बेस में होना चाहिए वेरिएबल एंड बेटा पावर में होना चाहिए कांस्टेंट। तो चेक करो बेटा तुम्हारे पास बेस में वेरिएबल तो था, बट क्या तुम्हारे पास बेटा पावर में कांस्टेंट था क्या? नहीं, तो फिर यू कैन नॉट कंसीडर बेटा दिस गिवन टर्म टू बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज टू एन। दैट मींस योर आंसर इज बेटा रॉन्ग। चलो कम ऑन, हिम्मत मत हारो बेटा, चलो ट्राई करो, कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग।
भाई फिर से चेक करके बताओ, एक्स रेस टू एक्स। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है बेटा कि दिस गिवन टर्म इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेस टू एक्स? करण को लग रहा है, अरे वाह, वेरी गुड। और किसको लग रहा है बेटा? अमित को भी लग रहा है, मेहुल को लग रहा है, क्या बात है भाई, वेरी गुड। भाई जिसने भी ये सोचा है बेटा कि द गिवन टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेस टू एक्स, कृतिका वेरी गुड बेटा। बेटा एकदम ही रॉन्ग सोचा है बेटा, रॉन्ग। समझ में आया सबको? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, जिसने भी ये सोचा है बेटा कि एक्स रेस टू एक्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू एक्स, हा हा हा, क्या बात है भाई उर्वी, उर्वी बेन, यू आर द जीनियस, ग्रेट, यू आर द लीजेंड बेटा, जिसने ये सोचा है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू एक्स। और जिसने भी बेटा ये सोचा है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू एक्स बेटा, once again but I will like to say that the answer is wrong madam, and it is not only wrong madam, it is a drastically horrible wrong answer madam। क्या है बेटा? इट इज द ड्रास्टिकली हॉरिबल रॉन्ग मैडम, क्योंकि ई रेस टू एक्स के लिए मैडम बेस में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए था? ई होना चाहिए था। बट क्या तुम लोग के पास बड़ा ई है? नहीं है। तो इसका मतलब जिसने भी बड़ा ये सब आंसर्स सोचे थे कि द गिवन टर्म इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेस टू एन और इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेस टू एक्स और बड़ा इट इज इन द फॉर्म ऑफ ई रेस टू एक्स, ये सारे के सारे आंसर्स क्या थे? रॉन्ग आंसर्स थे मैडम, है ना? Please everyone maintain but a 2 minute silence for them. Everyone should maintain but a 2 minute silence madam. क्योंकि ये सारे के सारे आंसर्स जो थे बेटा वो एकदम रॉन्ग आंसर्स थे, है ना? भाई सिचुएशन देख के तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि सर हम लोग के पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास बेस जो है वो वेरिएबल है, पावर जो है वो भी वेरिएबल है। तो इसका मतलब द सिचुएशन बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल। भाई दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, भाई इसको सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को कौन सॉल्व कर सकता है बेटा? कौन सॉल्व कर सकता है? हु कैन सॉल्व? चलो फटाफट मुझे आंसर दो, फटाफट बच्चा लोग आंसर दो। मैथमेटिशियन ने बेटा ये ऑथोरिटी किसको दिया है? लॉग को दिया है बेटा। बट दूर दूर तक बेटा चेक करो, पूरे रेगिस्तान में बेटा क्या तुम्हारे पास बेटा लॉग वाला टर्म है? क्या तुम्हारे पास बेटा लॉग वाला टर्म है? नहीं है। भाई नहीं है तो क्या करे, उसे हमें लाना तो पड़ेगा, बराबर है? बट भाई ऐसे ही नहीं आएगा, लॉग को तुम लोग को बड़ा इनवाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉग को इनवाइट, और इनवाइट करने के लिए बेटा बोलना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। क्या बोलना पड़ेगा बेटा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स बेटा। रेडी? So you can start बेटा with the sum। ये देख बेटा, taking एक बेटा taking log on both the sides, बराबर है? तो ये देख बेटा, जैसे ही तुम लोग बोलोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, सब में बेटा लॉग का आगमन होगा बेटा। क्या होगा सब में? लॉग का आगमन, एंड यू विल गेट द आंसर ऐसे। देख बेटा,
log y is equal to log y is equal to log x रेज टू x बराबर है। ये ओवरटेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। अब हमारे लिए ना बड़ा ये जो पावर में x जो होता है ना बड़ा पावर में x, वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो क्यों ना बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएटर को यहाँ से निकाल दिया जाए बाय यूजिंग अ डैश रूल। चलो ये पावर को बड़ा हटाने के लिए मुझे कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? log y बटा विच इज इक्वल टू बराबर है पावर रूल। तो यही पावर बड़ा आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर एज x इंटू लॉग एक्स। चलो भाई ध्यान से चेक कर। अब ठीक है मैडम। हाँ अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है मैडम। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग अपना सम इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व। बट ध्यान से चेक कर बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में अब हम लोग के पास बेटा खाली y वाला टर्म नहीं है, हमारे पास कौन है, log y वाला टर्म बेटा। इसीलिए अब स्टेटमेंट में बेटा थोड़ा सा चेंजेस होगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, बेटा we will write differentiating both the sides with respect to x। फटाफट लिखो बेटा, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x बेटा। डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x बोला बेटा। applying the operator d by dx on both the sides बेटा। देख d by dx of log y it will be equal to d by dx of x into log x। चल बेटा फटाफट लेफ्ट हैंड साइड बेटा चेक करो, log y it is in the form of log x। बच्चा लोग मुझे बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x। फॉर्मूला था x के लिए यूज किया, y के लिए भरना पड़ेगा पेनल्टी बेटा। अरे वाह वेरी गुड मेर। तो डेरिवेटिव ऑफ log y बेटा आंसर इज 1 अपॉन y बेटा इंटू